या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Thank you, Dr. Nagarajan ji. The Yadathor Sri Yoganandeshwara Saraswati Math is one of the maths established in Karnataka following the tradition of Sri Shankara Bhagavata Padacharya. It was established around 800 years ago on the bank of river Kaveri at Yadathor of Mysore district by revered Sri Sri Yoganandeshwara Saraswati Swamiji. Many yatis, siddhas and jivan muktas, of whom Sri Sri Rama Brahmananda Saraswati Mahaswamiji is well known to have adorned the Pita and have been creating spiritual awareness in the society by propagating the teachings of Sri Shankara Bhagavad Padacharya. After Sri Sri Shankara Bharata Mahaswamiji ascended the Pita in the year 1995, drastic change is seen in the history of the math. Sri Swamiji has effected renovation of the math and its properties, traveled widely spreading the message of Sanatana Dharma and initiated many measures to engage in philosophical, spiritual and social activities. Vedanta Bharati, with the blessings of the chief patron Parama Pujya Jagadguru Shankaracharya of Sri Sharada Peetham, Sri Sri Bharata Tirtha Mahaswamiji, and with the guidance of the patron Pujya Sri Sri Shankara Bharati Mahaswamiji, has been organizing several programs for propagating the teachings of Sri Shankaracharya to the common person. These programs like Shankara Sandesha Saptaha, Shankara Saraswati Stotra Patana Mahavijnana, publishing of books of Sri Shankara Dvaita, Vedanta Chintana Gosti, Vatu Sikshanam, Vivekotkarshini competitions for school children regarding Bhagavad Gita and the life of Sri Shankaracharya, Viveka Vidhi, to inculcate the values, the Vashyamrita Vahini, a week-long lecture program on Upanishads held in hundreds of centers throughout Karnataka, retreat programs, discussion forums on philosophy are geared towards enhancing oneness for all and purity of mind for the devout. 2007 saw the convention for Saundarya Lahari Samarpana in the presence of Jagadguru Shankaracharyas of Chaturmanya Peethas. In 2017, more than 2 lakh Parayana Kartas participated in
Dashava Saundarya Lahari Maha Samarpana in the presence of our Prime Minister, Honorable Sri Narendra Modi ji. In 2019, the book release of Viveka Pujani was held in the presence of Honorable Sri Venkaiah Naidu, the Vice President of India at New Delhi. Our Minister, Honorable Sri Amit Shah, participated in Vivekadipini gatherings of lakhs of school children at Bengaluru in 2020. Recently, Saundarya Lahari Mahabhiyana was initiated in Kerala on Sri Shankara Jayanti Day, and within a short span of 6 months, more than 1,50,000 devotees learned the Stotra online in about 200 centers across the Kerala. During the recent Yatra of the Swamiji in Kerala, apart from the spiritual programs in several places, the Maha Samarpanam was conducted in Thiruvananthapuram. With the intention of arranging such programs all over India, several celebrated yatis from all over the country met at Sringeri and attended the Sri Shankara Yasholahari program held at Bengaluru. They have resolved to observe Shankara Jayanti meaningfully and to make known the message of Shankara to all. In furtherance of this program, Sri Shankara Bharati Swamiji travelled in parts of India, and a good number of Acharya Maha Mandaleswars and Maha Mandaleswars and other sannyasis participated in Yati Samavesh held at Haridwar during Maha Kumbh Mela and pledged their time and resources for the propagation of universal oneness in thought and in Upanishad, universal oneness taught in Upanishads and as expounded by Sri Shankara Bhagavad Padacharya. It was resolved there to establish an international institution for studies and research in Advaita Vedanta and other Shastras. A temple for Sri Shankara Bhagavad Padacharya is also envisioned to be consecrated in Ayodhya, and efforts are on to secure suitable land for these purposes. Many matas of Sri Shankara Sampradaya, Sri Ramakrishna Ashrama, Chinmaya Mission, Ashra Vidyapita, and many ashrams in different parts of India, Akhanda Parishad, several ashrams in Kashi, Rishikesh, Haridwar, and other places, Sri Vyasa University, and several other institutes are supporting this noble cause. A mammoth convention of sannyasis was also organized in Varanasi in the 3rd week of March 2022 to make collective efforts to achieve the goals detailed above. In this backdrop, Sri Shankara Bharati Swamiji has undertaken tour of several parts of India to connect religious and spiritual institutions come to common people with the task that has been with the noble task of encouraging them to benefit from such noble scriptures. Sri Swamiji is visiting IITK Enru to bless us all and to make us a part of this noble cause. With this brief introduction, as shared by Dr. Sridhara Hegde, the Director of Vedanta Bharati, I now request Swamiji to deliver his divine benediction to all of us.
बारे में हम सब जानते हैं। किंतु इस स्तोत्र का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हमें चिंतन करना है। इसलिए आज स्तोत्र का महत्व। पहले मैं और एक विषय के बारे में कुछ वाक्य बोलना चाहता हूँ। हमारे दुख या सुख, इसके कारण है हमारा ही मन। और अलग कोई विषय या साधन दुख का हो या सुख का हो नहीं होता। इसलिए हम तो दुख नहीं चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। तो सुख प्राप्त करने के लिए साधन एक ही है, मन, अलग कोई नहीं है। इस कारण से हमें मन के बारे में चिंतन करना पड़ता है पहले। तो बहुत बड़ा विषय है, इसलिए वो विषय और जब अवसर आएगा उस संदर्भ में हम चिंतन करेंगे। किंतु ये मन जो है हमारा, मन में आनंद लाने के लिए, संतोष लाने के लिए क्या क्या साधन है, हमारे पूर्वजों ने साधन के बारे में क्या कहे हैं, ये हमारा विषय है। उसमें अत्यंत प्रमुख साधन है मन का नियंत्रण करने के लिए या मन में आनंद लाने के लिए, तो वो है स्तोत्र है। इस स्तोत्र के बारे में अनादिकाल से, वेद काल से ही महत्व दिए हैं। उदाहरणार्थ, हमारे संस्कृति में 4 वेद हैं। उसमें ऋग्वेद है तो बहुत बड़ा वेद है। पूर्ण ऋग्वेद यह तो स्तुतिमय है, स्तोत्र केवल है ऋग्वेद में। आप जानते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, किंतु ऋग्वेद वो तो केवल स्तोत्र है। इसलिए यज्ञ याग के संदर्भ में ऋग्वेद का उपयोग होता है स्तुति करने के लिए, देवताओं की स्तुति करने के लिए उसका उपयोग होता है। यजुर्वेद का उपयोग होता है कैसा यज्ञ करना है, किस प्रकार से करना है, इसके बारे में यजुर्वेद का उपयोग होता है। सामवेद का उपयोग होता है गान के लिए, ऐसी व्यवस्था। उसका अर्थ है वो ऋग्वेद स्तुति है, स्तोत्र है। इसलिए वेद स्वयं स्तोत्र के अत्यंत महत्व दिया है। ये तो पहला विषय। इसका कारण क्या है? सहस्रनामादि संदर्भ के अवसर में हम जान सकते हैं। वहाँ बतलाया है स्तोत्र के बारे में, आप अभी देख सकते हैं। ये विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में आता है, स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोता रणप्रिय, ऐसा स्तोत्र है। पहला शब्द है स्तव्य। परमात्मा को यह शब्द है स्तव्य। स्तव्य इस शब्द का अर्थ है स्तोत्र से प्रीति करवाने का लिए एक जो परमात्मा उपयोग होता है उसको स्तव्य ऐसा बदला है। यानी स्तोत्र से परमात्मा शीघ्र ही सुप्रीत होता है, सुप्रसन्न होता है, इसका अर्थ है। स्तव प्रिय और दूसरा शब्द है वो भी वह अर्थ बताता है। स्तोत्रम स्तुति ही स्तोता, और आगे चलता है परमात्मा का नाम के बारे में। यह 2 शब्द है, इससे हम
जान सकते हैं कि परमात्मा स्तुति से अत्यंत सुप्रीत होता है, शीघ्र होता है। ये देखिएगा। और ललिता सहस्रनाम आप देखिए, ललिता सहस्रनाम में भी स्तोत्र प्रियाय नमः ऐसा नाम है, और स्तुति मध्य नमः ऐसा नाम है, स्तुति मध्य ये नाम है। इसका अर्थ है परमात्मा स्तुति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होता है। इसलिए वेद भी स्तुति के लिए ऋग्वेद परिपूर्ण रूप में पढ़ाते हैं। इस स्तोत्र का महत्व आपात हम हमने और मन के बारे में बताया। उस स्तोत्र से कितना महत्व, परमात्मा का संतोष हो, उस संतोष का कदर करने से हमें फल मिलता है। परमात्मा जो संतुष्ट होता है, हम उसका अनुग्रह प्राप्त होते हैं, तो उस समय हमें फल मिलता है। ठीक है, वो तो एक बात। अत्यंत प्रमुख बात यह है कि स्तोत्र से मन की क्या, मन हमें साधन है फल अनुभव करने के लिए, सुख या दुख मैं बतलाया पहले ही। इसलिए उस विषय में क्या स्तोत्र का महत्व कोई है, ये देखना है। उसके बारे में मैं आगे अभी बताऊँ कि मन में दुख होता है या हमारा जीवन में हम गिरते हैं, मन के कारण। कब गिरते हैं, कारण क्या, इसका विश्लेषण हम किए तो तब स्तोत्र का महत्व हम जान सकते, ध्यान में ला सकते। अब देखिए, मन का पतन ये कब होता है, कैसा होता है, प्रमुख अंश मैं अभी उल्लेख करूंगा, आपको भी ध्यान में होगा। प्रथम है इंद्रियों के द्वारा मन का पतन होता है, तो हम जानते हैं वो तो समझने में कोई मुश्किल नहीं है, इसमें तो हम सब जानते हैं इंद्रियों का द्वारा कैसा मन का पतन होता है, हमें हर दिन अनुभव में है। मैं सदा बताता हूँ कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा खाने के लिए उसको अनुमति नहीं है, वैद्य नहीं अनुमति देते हैं, गड़बड़ होगा उसका आरोग्य में। फिर भी वो तो स्वीट खाता है। हम भी डायबिटीज है, हम जानते हैं, और अपाय में है वो भी जानते हैं, फिर भी हम मधुर खाने से पीठ और हम नहीं छोड़ेंगे, खाते हैं। कारण क्या, इंद्रिय निग्रह नहीं होता। जो रसनेन्द्रिय है उसके बारे में निग्रह नहीं है, नियंत्रण नहीं है। वो तो मांगता है स्वीट आवश्यक है, स्वीट आवश्यक है, हम देते हैं, डायबिटीज अधिक होता है, रोग बढ़ता है। ये तो हमारा अनुभव है। इसमें कारण है इंद्रिय के द्वारा मन, उनका प्रवेश हुआ, मन इंद्रियों का सेवक हुआ, वही कारण है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा हमारा मन का पतन अवश्य ही होता है, एक कारण। और स्मरण हमें हमारा जीवन में जो किए हैं पिछले, उसका स्मरण से भी हमारा मन गिरता है। बहुत उदाहरण दे सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, और हमारा जीवन में वो भी अनुभव में है। और तीसरा है वासनाओं से भी गिर सकता है। यहाँ थोड़ा बताना है। वासना शब्द का अर्थ यह है, हमारे जीवन में पूर्व जो काम हम करते हैं उसका संस्कार वो मन में रहता है, सूक्ष्म रूप में मन में रहता है। मन का और एक नाम है अंतःकरण।
यह जब उठता है जीवन में, उसका वासना ऐसा हम कहते हैं। उदाहरणार्थ हमारा भावनाएं, बोल सकता हूँ क्रोध या हास या दुख, ये सब कैसा आता है हमारे जीवन में, हम सब अनुभव में जानते हैं। क्रोध आता है, हम सब जानते हैं क्रोध तो न करना है। क्रोध से बीपी अधिक होता है या आरोग्य गड़बड़ होता है आरोग्य में। क्रोध करना ठीक नहीं, और क्रोध से अपाय भी है हमें। अलग व्यक्तियों के बारे में यदि जब हम क्रोध करते हैं, उससे हमें भी हानि है, जानते हैं हम, और शास्त्र में भी बताए हैं। और हमारा माताजी पिताजी या सहोदर ये सब बताते हैं क्रोध न करना, क्रोध न करना, क्रोध न करना, ये सब हम जानते हैं। फिर भी क्रोध तो आता है, क्रोध तो आता है। मैं तो सदा हमारा उदाहरण देता हूँ, हम सन्यासी है, सन्यासियों को क्रोध न करना है, ये तो नियम है। किंतु सन्यासी होकर भी क्रोध तो अवश्य आता है, अवश्य आता है। इतना ही नहीं, मेरा दिमाग में नहीं उसके बारे में सोचने के अवसर भी नहीं होता है, उसके पूर्व ही क्रोध उठता है, क्रोध आता है। पश्चात मुझे मन में पश्चाताप होता है, वो क्रोध न करना था, अभी क्रोध आया, क्या करें, ऐसा पश्चाताप करते हैं। यहाँ एक क्रोध किस कारण से, क्या कारण उठता है, क्या कारण आता है, उसका कारण यह है, उसका संस्कार हमारे मन में जन्म जन्मांतर से है, इसलिए क्रोध आता है। उसका वासना करते हैं। बचपन से हम हंसते हैं, रोदन करते हैं, ये सब हम जानते हैं। अभ्यास के बिना कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, ये भी हम जानते हैं ना। तो क्रोध कैसे आता है, दुख कैसे आता है, हम सहन कर सकते, कैसे कर सकते हैं? क्या माताजी अभ्यास करवाते हैं क्या हंसने के लिए? कानपुर में नहीं जाना, मैदान का हमारे मैसूर में नहीं सिखाता है माताजी, ऐसा क्रोध करो, ऐसा हंस करो, उपाय है, कोई नहीं करता है। किंतु आता है, कहाँ से आता है? अभ्यास के बिना कैसा आता है? लॉजिक था ना, उत्तर देना है। हमारा शास्त्र कहता है तो वासना का, हमारा मन में जन्म जन्मांतर का वासना है, उस वासना से उठता है। इससे क्या होता है? मन का पतन होता है, मन दुख का अनुभव करना ही पड़ता है मन को, कोई संदेह नहीं। इसलिए तीसरा है, वासनाओं से भी गिर सकता है। ये तीन चीजों मुख्य रूप में मैं बताया हूँ, बहुत चीजों है, आप अभी चिंतन कर सकते हैं, ये तो मेरा विश्वास है। अच्छा, एक विचार और अगले इस विषय में स्तोत्र का प्रभाव क्या है? स्तोत्र पठन से, स्तोत्र कहने से क्या होगा? इसका निवारण होता है क्या? होता है कि तो कैसा हो सकता है? इसके बारे में हमें चिंतन करना है। अभी पहला पंक्ति आप पढ़ सकते हैं। पहला पंक्ति है, स्तोत्र पठन से हमारा मन में क्या संस्कार होता है, एक एक बताओ। पहला है, निष्प्रभ भाव मन की शुद्धि का कारण बन सकता है। इस स्तोत्र का विशेष महत्व है। अभी यहाँ प्रार्थना किए हैं, प्रार्थना में क्या कहे हैं? सरस्वती जी का प्रार्थना किए, वहाँ कोई मांगना नहीं है उस प्रार्थना में। आप सब जानते हो, तो प्रसिद्ध स्तोत्र है, प्रसिद्ध प्रार्थना है, उसमें मांगना कोई नहीं है। फिर भी यह स्तोत्र पढ़ने से फल अवश्य मिलता है। निष्प्रभ भावना से स्तोत्र पठन करने के लिए यह स्तोत्र का रचना की है पूर्वजों ने। फिर भी स्तोत्र से हमें फल मिलता है। क्या फल मिलता है? हमारा मन में क्या क्या है अपेक्षा, वो सब उनका फल क्रमशः मिल सकता है। एक साथ मिलता है ऐसा नहीं हम बोल सकते।
क्रमशः उसके कर्मानुसार फल मिलता है। कोई भी फल नहीं मिलता है तो एक फल तो निश्चय रूप में मिलता है प्रार्थना करने वाले, वो है मन का शुद्धि। मन का शुद्धि इसका अर्थ है राग द्वेष काम क्रोध, इसका क्रमशः निवारण, क्रमशः नाश। यह है मन शुद्धि का अर्थ है। शास्त्र में यह ही है। इसलिए हमें मन में आनंद लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है मन शुद्धि, यानी राग द्वेषादि ये सब का निवारण होना है, निवारण करना है, तब क्रमशः आनंद का आविर्भाव अधिक होता है। इसलिए स्तोत्र पठन से यह फल अवश्य सब लोगों को यह मिलता है जब निष्प्रह रूप में निष्काम भावना से हम स्तोत्र पठन करते हैं। इसलिए पूरे जन ने क्या की है, स्तोत्र में अधिक मानने के नहीं गए। उसमें भी श्री शंकराचार्य जी, उनका सब स्तोत्र में मानना नहीं है, केवल स्तोत्र परमात्मा का स्तुति करता है। उस स्तुति से ये मन शुद्धि होता है। इसलिए स्तोत्र का महत्व है, अत्यंत प्रमुख है कि मन शुद्धि और कर्तृत्व भोक्तृत्व चिंतन। हमारे दुख का और एक कारण है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये भावना है ना, इसको कर्तृत्व, संस्कृत में कर्तृत्व ऐसा कहते हैं। और इसका फल मैं अनुभव करता हूँ, इसका फल अभी मैं फल का अनुभव में लाता हूँ, ये सब भोक्तृत्व शब्द से बताया। ये दो है संसार शब्द का अर्थ। हमारा शास्त्र में संसार यानी यजमान, गृहिणी, पुत्र, बंधु, ये सब संसार ऐसा कहते हैं। तो ठीक है, व्यवहार में तो सच्चा व्यवहार है, किंतु संसार शब्द का अर्थ शास्त्र में बतलाया है। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व जब होता है, इसका संसार कहते हैं। इसलिए व्यवहार में भी मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पिता, ये सब भावना है ना, ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व में आता है। इसलिए उसको भी संसार कहते हैं। किंतु शास्त्र में कर्तृत्व भोक्तृत्व चिंतन, ये संसार है, इससे दुख उत्पन्न होता है। अभी इसका निवारण करना है। इसका निवारण करने में भी और कोई विशेष प्रयत्न वो तो सफल नहीं होता है सामान्य, किंतु स्तोत्र पठन से एक कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव कम होता है और अंततोगत्वा पूर्ण रूप में नाश होता है। ये इतना महत्व है स्तोत्र पठन से। मैं उदाहरण देता हूँ, फिर आगे एक एक सबको उदाहरण देता हूँ। और तीसरा है, स्तोत्रों में मन शुद्धि के साथ धैर्य, वस्तु स्वरूप, अपना स्वरूप, इसको जानने का उपाय, ये तो अत्यंत मुख्य है। अभी तक हम क्या चिंतन करते हैं सहज रूप में, व्यवहार में, मैं यानी शंकर भारती, ठीक, इतना ही नहीं। मेरा एड्रेस, मठ का एड्रेस है मठाधीश, ये भावना है। ये मेरा परिचय कभी बताए, मैं भी वो परिचय बताऊँ। इसलिए मैं यानी इतना ही, ये तो मेरा भावना होगी। किंतु वस्तु स्वरूप में, वास्तविक रूप में मैं यानी इतना नहीं, आप शायद जानते होंगे। मैं यानी चेतन नहीं, देह मेरा देह ऐसा कहते हैं, मेरा मन, मेरा प्राण। जब ऐसा कहते हैं तो मैं अलग होता है, मेरा वस्तु देह हो, प्राण हो, मन हो, इंद्रिय हो, ये सब अलग होता है। इसलिए मैं यानी कब, मैं यानी अंततोगत्वा चेतन है, आनंद है। हमें अनुभव में हर दिन करते हैं ना, गाढ़ नींद में, गाढ़ सुषुप्ति, ये संस्कृत में शब्द है। नींद करने समय हमारा अनुभव क्या है, केवल आनंद है सब लोगों का। उसका इसका उसमें भेद ही नहीं। जहाँ होंगे और दुनिया में कहाँ भी हम जाएंगे तो भी नींद का अनुभव सब लोगों का समान है। तो हमारा देश का दूसरा देश का अलग नहीं है। कारण क्या? कारण एक है, हमारा पूर्ण स्वरूप है, सब लोगों का आनंद है।
इसलिए नींद संदर्भ में सब लोगों का केवल आनंद उत्पन्न होता है। न केवल इतना, सुबह उठने से बाद हमारा अनुभव क्या है? मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, जो किया हूँ, नींद में किया हूँ, ऐसा हमारा अनुभव है। कैसा है अनुभव? नींद में मन नहीं होता है, इंद्रिय नहीं होता है, प्राण केवल काम करता है। हमारा शरीर तो मंच पर शवा सदृश तो आसन होता है, फिर भी हम कहते हैं मेरा निद्रा में ठीक तरह से मैं नींद किया, आनंद अनुभव मैं किया, ये कहते हैं। कारण यह है, उस संदर्भ में हम आनंद रूप में ही रहते, ये तो हमारा वास्तविक रूप। इसलिए यहाँ कहा है वस्तु स्वरूप, अपना स्वरूप इनको जानने का उपाय। ये जानने का उपाय मन शुद्धि के साथ स्तोत्र पठन से हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप चिंतन कीजिए कितना महत्व स्तोत्र पठन की। अति सरल उपाय है। प्रातः सुबह उठने के बाद स्नान या सब समाप्त करके एक स्तोत्र पठन से इतना महत्वपूर्ण अंश अथवा फल हम प्राप्त सकते हैं स्तोत्र से, और हमारे शंकाओं का समाधान इन सभी अंशों में जुड़े हैं। जुड़े होने से कारण आत्मोद्धार के लिए राजमार्ग, ये तो बताना अत्यंत आवश्यक है। हम स्तोत्र पठन करते हैं, श्रद्धालु, उसमें कोई संदेह नहीं। स्तोत्र पठन संदर्भ में किस देवता के बारे में यह स्तोत्र पढ़ते हैं, क्या उस देवता के बारे में हमें परिपूर्ण स्वरूप का परिचय होता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता है। कभी होता है, कुछ श्लोक में होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। किंतु सामान्यतः उसके बारे में हमें परिचय नहीं होता है। मैं उदाहरण बताऊंगा। अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ऐसा स्तोत्र है। रामाय ऐसा शब्द है, क्या राम का स्वरूप यहाँ है क्या? नहीं, केवल रामाय शब्द है। रामा जी को अर्थ इतना ही है। रामभद्राय उसमें भी नहीं है। रामचंद्राय ऐसा पूर्ण स्तोत्र में जो राम जी का स्तोत्र हम करते हैं, राम जी का पूर्ण स्वरूप यहाँ नहीं है। किंतु श्री शंकराचार्य जी का स्तोत्र और अलग भी स्तोत्र हम देख सकते हैं। कुछ स्तोत्र पुराण में है, अलग ग्रंथों में भी है, महात्मा लिखे हैं। किंतु शंकराचार्य जी का स्तोत्र में सब जगह में जो देवता के बारे में हम स्तोत्र करते हैं, पठन करते हैं, देवता का पूर्ण स्वरूप हमारा आंखों से सामने जैसा आएगा ऐसा किए हैं स्तोत्र। कारण यह है, स्तोत्र पठन करता वो तो स्वरूप, देवता स्वरूप आंखों के सामने रखकर वो तो पठन करता है तो अवश्य ही फल मिलता है। इसलिए स्तोत्र में ऐसा व्यवस्था की है। और है उदाहरण मैं यहाँ दिखाता हूँ। हरिमेढ़ शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, हरिस्तुति ऐसा भी नाम है। और राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र राम जी के बारे में है। सौंदर्य लहरी माता जी जगदम्बा राजराजेश्वरी के बारे में है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है और दशश्लोकी है, निर्वाण षट्क है, गुरुवट्टक है। इस तरह अनेक स्तोत्र, ये सब मन शुद्धि करने के लिए अत्युत्तम उपाय है। और ऊपर क्या बताए हैं, ये सब चीजों ये स्तोत्रों का पठन से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये और स्तोत्र पठन से ये अंतर्मुखत्व। सामान्यतः हमें स्तोत्र, सामान्य स्तोत्र पारायण करते होंगे, उस समय हमें तो बहिर्मुखता ये भी देख सकते हैं। स्तोत्र पठन करते हैं किंतु मन तो बाहर चलता है। अनुभव में यांत्रिक रूप में
हम स्तोत्र पठन करते हैं सामान्य, किंतु कुछ श्लोक ऐसे हैं, स्तोत्र ऐसा है, वो पठन से कभी भी मन बाहर नहीं जाता, बहुत गंभीरता से हमारा अंतर्मुख ये तो गुण आता है स्तोत्र पठन से, और एकाग्रता भी स्तोत्र से, और भक्ति और उपासना। उपासना भक्ति तो दो शब्द केवल अलग है, सामान्यतः दोनों का भी तात्पर्य एक ही है। सभी दक्षिणामूर्ति जैसे स्तोत्रों में संभव है, ये तो मुख्य रूप में आप ध्यान में रखें। एक स्तोत्र दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति अष्टक ऐसा शंकराचार्य ने लिखे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजात सारम होता है, आप सुनेंगे। ये इस स्तोत्र में ये सब चीजों है, एक स्तोत्र में सब चीज। सौंदर्य आप कभी सुने हैं नाम, उस स्तोत्र में भी ऐसा है, ये भक्ति उपासना एकाग्रता अंतर्मुख ये सब चीजों वहाँ, इसलिए स्तोत्र का ये महत्व हम जान सकते हैं। तो इतना ही नहीं और विशेष महत्व है। उदाहरणार्थ इंफीरियरिटी, नैत्यानुसंधान, ये तो सब लोगों का मन में रहता है। आप लोग अत्यंत शिक्षित लोग हैं, ठीक है, सब जानते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, फिर भी हमारे मन में इंफीरियरिटी तो है, भिन्न भिन्न विषय में हो सकता है। विद्या के बारे में नहीं हो सकता है आप लोगों को, क्या आप लोग डॉक्टर लोग हैं और भिन्न भिन्न पदवी प्राप्त किए हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं होगा। किंतु और हमारे मित्र वो भी डॉक्टर है, वो भी बुद्धिमान है, उसके तुलना करने के समय हमारे विषय हमें हमारा चिंतन कैसा होता है, वो उसमें वो है, मुझे नहीं है, मेरा जीवन में नहीं है, ऐसा एक विचार। ये तो इंफीरियरिटी नहीं, क्या सुनना है। हमारे सन्यासियों को बारे में आप चिंतन कीजिए, कैसे हम सन्यासी समाज, सन्यासी गण, भाई सन्यासी होकर आनंद का अनुभव करना मेरा जिम्मेदारी, उसमें कोई संदेह नहीं। क्या सन्यास ही अत्यंत श्रेष्ठ है, हमारा संस्कृति में अत्युत्तम स्थान दिए है, इसलिए मैं सन्यासी होकर अत्यंत संतोष में जीवन करना मेरा जिम्मेदारी। किंतु क्या करता हूँ मैं, सुबह से शाम तक और सन्यासी जो होता है उनको देखकर नहीं वो तो ये है, ऐसा है, मैं तो ये ऐसा हूँ। उसके पीछे 4 मुख्यमंत्री हैं, 8 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ निकट संबंध है, मुझे वो तो नहीं है, मुझे वो करना है, ये सब विचार होता है। छोड़ दे, एक कपड़ा के बारे में होता है सन्यासियों के मन में, उनका कपड़ा ऐसा है, मेरा कपड़ा ऐसा है। ये इंफीरियरिटी होता है तो कैसा व्यक्तित्व विकास हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हमारा देश में आज जो समस्याएं हैं, शायद आप अभी निर्णय कर सकते हैं कि इंफीरियरिटी ही मुख्य कारण है। जो कुछ समस्या हो आप विश्लेषण कीजिए। अभी भी मैं बताया नैत्य, तो संस्कृत में नैत्यानुसंधान ये शब्द है इंफीरियरिटी। श्री शंकराचार्य जी ने ये निवारण करने के लिए स्तोत्र में कैसा उपाय किए हैं आप देखिए। शिवानंद लहरी का एक स्तोत्र है, नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं अशकता, ये पहला पंक्ति है। दूसरा पंक्ति है पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजन। तीसरा पंक्ति है सदा उत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी। अंतिम पंक्ति है विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा। एक स्तोत्र आप देखिए, ये बार बार मन में हम यदि पठन करते हैं
कैसा आत्मविश्वास आता है, न केवल आत्मविश्वास आता है, ये नैत्यानुसंधान इंफीरियरिटी परिपूर्ण रूप में नष्ट होता है। कारण क्या? श्री शंकराचार्य ने कहते हैं सदा तत्पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा। अरे आपका शरीर जो भी हो, मनुष्य का हो या देव का हो या नागावर्ण मृगत्वम मशकता, यहाँ हिंदी में है, फिर मैं उसका विवरण नहीं देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी शरीर हो, किंतु प्रमुख विषय है आप उस शरीर में क्या किया, आपका मन कहाँ लगा, यह तो मुख्य बात है। वो तो लगना है परमात्मा का चरण में, चरणारविंद में। यदि आपका मन परमात्मा का चरणारविंद में रहता है, लगता है, तो शरीर कुछ भी हो उससे कोई काम करना आवश्यकता नहीं, उसके बारे में चिंतन करना आवश्यकता नहीं। ये तो हमारा संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण में आप सुने होंगे, भागवत जैसा जो ग्रंथ में बताए हैं उदाहरण, भागवत में बताए हैं गजेंद्र का कहानी आप सुने होंगे। उसका शरीर तो गज का शरीर था, फिर भी परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त किया। अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है आंजनेय जी, आंजनेय स्वामी, हनुमान जी। हनुमान जी का शरीर कैसा होता है हम जानते हैं, किंतु हनुमान हमको भी तो पूजनीय वस्तु है। कारण क्या? हनुमान जी का मन सब सदा सर्वदा राम 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 राम, बस। इसलिए शंकराचार्य ने कहते हैं आपका शरीर कुछ भी हो, तो जो हो, किंतु आपका मन परमात्मा का चरण में बना है। ये स्तुति करने से परमात्मा को अनुग्रह भी हम प्राप्त सकते हैं। न केवल इतना, हमारा मन परमात्मा के चरण में लगाने के लिए ये तो अत्यंत उपाय है, मुख्य उपाय है स्तोत्र। एक इस स्तोत्र से हम मन में ध्यान में रख सकते हैं, तो मेरा विश्वास है। और दूसरा है शिवानंद हरि का है, गुहायां गेहे वा बहिरपि वने मातृशिखरे। अति मुख्य रूप में मैं बताना चाहता हूँ। मैं तो कावेरी किनारे में, कावेरी तट में मेरा मठ है, वहाँ तो निवास करता हूँ। मैं सुना कोई सन्यासी उत्तरकाशी में या और ऊपर केदारनाथ क्षेत्र में वो तपस्या करता है, वो तो बहुत बड़ा तपस्वी है, ऐसा सुना। तब क्या होता है मेरा मन में, ओहो वहाँ तो अत्युत्तम क्षेत्र है तपस्या के लिए, इसलिए वो तो प्रसिद्ध तपस्वी हुआ, तो मैं भी वहाँ ही जाऊँगा। कावेरी के तट में तप करने से उतना तपस्वी होने के लिए अवकाश नहीं है, अवसर नहीं है, ऐसा मेरे मन में विचार आता है सर्वदा। तप करने के लिए स्थल के बारे में, पूजा करने के लिए, हाँ ऐसा करने से पूजा ठीक होगा। पूजा घर या पूजा मंदिर ऐसा ही होना है, और देवस्थान ऐसा है इसलिए वहाँ देव अधिक क्या सामर्थ्य से फल दाता है। ये भावना हमारा मन में, सब लोग को मन में होता है, तो वास्तविक वो नहीं है। शंकराचार्य बताते हैं आप घर में हो परमात्मा का प्रार्थना कर सकते हैं, या वन जाकर, अरण्य जाकर भी कर सकते हैं, अथवा पर्वत में कर सकते हैं, या आप सुने होंगे कुछ लोग जल में यहाँ तक जल जैसा होगा ऐसा वहाँ खड़े होकर ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। ये तो हठ योग में सब है, करते हैं कुछ लोग। शंकराचार्य जी कहते हैं ये स्थान या कैसा करता है ये तो मुख्य नहीं है, ये तो है किंतु मुख्य नहीं है।
मुख्य तो है सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शंभो तव पदे स्थितं चेत् असौ सह योगी। शंकराचार्य जी कहते स्थल कुछ भी हो, प्रकार कैसा भी हो, किंतु करना है मन परमात्मा का चरण। एक स्तोत्र में बताया। इसमें दो स्तोत्र में हम देख सकते हैं हमारा इंफीरियरिटी अथवा नीचा संभाव ये निवारण करने के एक प्रकार से श्री शंकराचार्य ने स्तोत्र में हमें बताया। ये एक है। और हमारे मन में भ्रांति होता है ना इसके बारे में, वहाँ ही श्रेष्ठ, यहाँ ही श्रेष्ठ, ऐसा ही करना है, मुझे भी ऐसा ही करना है, ये सब है ना, ये निवारण करके स्पष्ट मार्गदर्शन में स्तोत्र से प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट मार्गदर्शन, इसमें कोई संदेह नहीं, ये भी स्तोत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। और विष्णु विष्णु षट्पदी ऐसा एक स्तोत्र है शंकराचार्य जी का। फिर आप देखिए अति सरल स्तोत्र है, अति का छंद भी अत्यंत लघु है, छोटा है। अविनय मपनय विष्णु दमय मनशमय विषय मृग तृष्णा भूतदया विस्तारय तारय संसार सागरतः। बस इतना ही श्लोक। इसका अर्थ क्या है आप देखिए, हम नीचे हिंदी में अनुवाद किया है, एक बार पढ़िए। शंकराचार्य जी का स्तोत्र कैसा होता है ये हम हर श्लोक में देख सकते हैं। यहाँ प्रार्थना करते हैं शंकराचार्य विष्णु के बारे में। आप देखिए, पहला है प्रार्थना आविनय मापनय विष्णु। व्यक्ति के जीवन में विनय का महत्व कितना हम जानते हैं, किंतु क्या हम विनयशील हो सकते हैं? क्या कितना प्रयास करते हैं? जो विवेकवान है वो तो प्रयत्न अवश्य करता है विनय संपादन करने के लिए, किंतु मुश्किल होता है, कष्ट होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। केवल एक जन्म में बहुत जन्म में प्रयास करना पड़ता है विनय प्राप्त करने के लिए। नहीं तो कुछ जगह में विनय होगा, किंतु सब जगह में सदा सर्वदा विनय होता है ये तो नहीं बता सकते। न केवल आप लोगों के जीवन में, हमारा जीवन में भी ऐसा है। हमारा जीवन में गुरुजी का, मेरा गुरुजी के बारे में मैं विनय प्रदर्शन कर सकता हूँ, किंतु और लोगों के बारे में क्या विनय में व्यवहार कर सकता हूँ? क्या वो तो थोड़ा चिंतन करना है। क्या कारण? मूल रूप में विनय परिपूर्ण मैं प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो तो नहीं हो सकता। तो क्या करना है? विनय प्राप्त करने के लिए गुण आवश्यक है, मैं जानता हूँ, किंतु प्राप्त करने के लिए क्या करना है ये तो मुझे मालूम नहीं होता है सामान्य। किंतु स्तोत्र में स्तोत्र पठन से ये तो सहज रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या कारण? कारण ये है ऐसा यहाँ उपाय बताए हैं श्री शंकराचार्य जी। और आप स्तोत्र में भी मैं प्रमुख रूप में शंकराचार्य जी का स्तोत्र के बारे में कहूँगा। अलग स्तोत्रों में भी हम देख सकते हैं, भिन्न भिन्न स्तोत्रों में आप वो तो इसके बाद चिंतन कर सकते हैं उस स्तोत्रों के बारे में। और द्वितीय है शांतमय मनः। तो मन का निग्रह अत्यंत आवश्यक, मन में ही आनंद लाना है, मन के द्वारा ही आनंद लाना है। इसलिए मन का नियंत्रण ये तो अत्यंत दुस्साध्य कष्टसाध्य ऐसा संस्कृत में बोलते हैं। फिर भी स्तोत्र से हम वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने यह प्रार्थना किया है, दमय मनः विषय मृग तृष्णा। ऐसा है अगले शब्द, इंद्रियों विषयों के बारे में वो तो शीघ्र ही जाते हैं, हमारा नियंत्रण में नहीं होते हैं। बुद्धि तो है, विवेक है, फिर भी इंद्रियों विषय के बारे में जाते हैं। तो निग्रह करने के लिए भी प्रार्थना अत्यंत उपयुक्त होता है। और अंतिम है भूतदया विस्तार। ये तो विशेष रूप में बदला है। आनंद तब होता है जब हमारा मन उदार होता है, विशाल होता है, व्यापक होता है। जब मन सीमा पर लिमिटेशन में काम करता है उस समय हम दुख का अनुभव अवश्य करते हैं।
अब देखिए, जागृत अवस्था में हमारा मन काम करता है। काम किसके लिए, क्या कारण करता है? कारण क्या? आनंद प्राप्त करने के लिए, दुख हटाने के लिए, दूर करने के लिए। हमारा अनुभव क्या है? छोटा छोटा आनंद जागृत अवस्था में, बड़ा आनंद हमें न प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षण तक का आनंद होता है और फिर दुख आता है, फिर आनंद आता है, ऐसा होता है। अच्छा, नींद करने के समय स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में क्या अनुभव है? उस समय में भी छोटा छोटा आनंद है, बड़ा आनंद नहीं है। किंतु वो मन नींद करने के समय व्यापक में लीन होता है। आप देखिए उस समय का आनंद कैसा होता है। जागृत अवस्था आने तक हमारा गाढ़ सुषुप्ति होता है, जब उस समय में आनंद अखंड आनंद है, व्यापक आनंद है, बड़ा आनंद है। इसलिए हम बार बार नींद करने के लिए हो जाते हैं। नींद नहीं आए तो वो तो उन्मत्त होता है। इसका कारण यह है, उस समय मन व्यापक होता है। जब मन व्यापक होता है, केवल आनंद। ये तो जागृत अवस्था में भी हमें लाना है। इसके अत्यंत आवश्यक है सब लोगों को बारे में, न केवल सब लोगों को बारे में, प्राणियों के बारे में भी और चराचर के बारे में भी हमें विशेष रूप में भावना रखना है। उसका दया करते हैं, जो कष्ट में होता है उसके बारे में चिंतन और सहाय करना, ये सब भाव जो है उसको दया। इसलिए शंकराचार्य ने कहते भूत दया विस्तार, उस पर संकोच नहीं करना। कष्ट मेरा कुटुंब में होता है तो मैं जल्दी वहाँ जाऊँगा, उसका परिहार करने के प्रयास करूँगा। और लोगों का आता है तो ऐसा उपेक्षा करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हमारा भावना सब लोगों के बारे में अति समान होता है, सहज समान रूप से होना है। इसलिए वो तो सहज रूप में नहीं आ सकता है, उसका प्रयास करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के प्रार्थना के संदर्भ में शंकराचार्य ने भूत दया विस्तारय, इस प्रकार से मेरा जो दुख है, तारय संसार सागरतः, ये दुख से पार करो, यह प्रार्थना इस श्लोक में, विष्णुपद श्लोक में। एक छोटा सा स्तोत्र है। इस स्तोत्र में श्री शंकराचार्य जी ने मन को शुद्धि करके मन में गुण लाने के लिए कितना प्रयास किए हैं, आप अभी देख सकते हैं। और आगे है हरिमीडे स्तुति है या हरिस्तुति, इतना ही करते हैं। अभी आप लोग ध्यान विशेष रूप में रखें, ये तो मेरा अपेक्षा है। शंकराचार्य जी का स्तोत्र एक कैसा होता है, अभी देख सकते हैं। ये आप देखिए अनुवाद प्रथम। परमात्मा है या ना, इसके बारे में पूछे तो क्या बोलेंगे हम? है ऐसा बोल सकते हैं क्या? मुश्किल होगा। क्या आप देखा है क्या? नहीं। आपका पिताजी? नहीं। उसका पिताजी? नहीं। तो कैसे हम कर सकते हैं परमात्मा है? इसके लिए अनुभव नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने वंचन किए हैं हमारे के बारे में। परमात्मा है तो श्रद्धा करो ऐसा बोलते हम तो ब्रेन वॉश किए हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। किंतु हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया, युक्ति बताए हैं कैसा परमात्मा का दर्शन सब लोग कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, हर क्षण कर सकते हैं परमात्मा का दर्शन। अति सरल उपाय बताए हैं, युक्ति बताए हैं। युक्ति के साथ हरि का स्तुति परमात्मा शंकराचार्य ने कैसा किए हैं हम यहाँ देख सकते हैं। शंकराचार्य इस स्तुति में कहते हैं तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। हरिमीडे ये शब्द का अर्थ है परमात्मा है विष्णु, जो हरि अथवा परमात्मा है, और तो
मैं स्तुति करता हूँ। वो परमात्मा कैसा है? मैं तो पहले बताया ना, स्वरूप जो देवताओं का हम प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र में उनका स्वरूप ठीक तरह से बताया है। इस तो स्तोत्र का महत्व है, तो मैं पहले बताया, अभी दिखाता हूँ, आप देखिए। इसका अर्थ मैं मेरा वचन में करता हूँ। तो अनुवाद किया है कि शंकराचार्य ने उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद है, तो उपनिषद में यही कहा है उपाय। क्या उपाय? अरे हम सब रात नींद करते हैं। नींद करने के समय ये सब शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, न केवल बुद्धि, मैं नींद करता हूँ, यह भावना भी नहीं होती है ना। कोई मैं नींद करता हूँ, मैं नींद करता हूँ, मैं नींद करता हूँ, मैं नींद करता हूँ, ऐसा चिंतन करके नींद करना चाहते हैं क्या? समर्थ होता है क्या? नहीं। मैं नींद करता हूँ यानी अहंकार, यह भी विश्रांति लेता है नींद में। तो चिंतन करें। अच्छा, बचपन से ही हम देखते हैं हर दिन हमारा ये सब शरीर से आरंभ करके अहंकार तक विश्रांति लेते हैं, किंतु एक ही वस्तु, वो तो प्राण है, वह विश्रांति नहीं लेता है। नहीं लिया है, ठीक है ना? आज मन में आप चिंतन कीजिए। आज रात आपका प्राण एक प्रार्थना किया आपके सामने, भाई आज मैं भी विश्रांति लेता हूँ, आज तक नहीं लिया हूँ, एक छुट्टी नहीं लिया, एक दिन। क्या स्वयं करते हैं? अच्छा ले वो तो नहीं, अपेक्षा में प्रकट किया है, नहीं करता है। नियत रूप से वो तो प्राण उसका काम करता है हमारे शरीर में। अरे इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है तो ये कैसा हो सकता है? कोई शक्ति होना ही है ना, नहीं तो कैसा? प्राण तो स्वयं कर नहीं सकता है, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। जड़ को स्वयं काम करने का शक्ति नहीं होता है, किंतु हमारा सब लोगों का प्राण नींद के समय केवल नहीं, सब संदर्भ में, सब अवस्था में भी काम करता है, किंतु नींद में विशेष रूप में हम ध्यान में ला सकते हैं। तो कोई वस्तु होगा ही, जो कोई संदेह, वो तो क्या, वही ये हरि है। वह वस्तु हमारा सब लोगों का हृदय में समान है। सन्यासियों का हृदय में अलग है, आप लोगों का में अलग है, नहीं है। वही हमारा स्वरूप है, वही है। शंकराचार्य कहते हैं तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमिड़े। अभी फिर एक बार आप इसका अर्थ देखिए। यह स्तोत्र, इसे यह स्तोत्र का महत्व। परमात्मा का दर्शन हमारा अंतरंग में, अंतःकरण में हम ही देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी क्या हम धैर्य से बोल नहीं सकते हैं? वो कोई शब्द, परमात्मा शब्द बोलो, देव बोलो, अथवा राम बोलो, कृष्ण बोलो, शब्द तो भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु एक महान शक्ति वो तो हमारा हृदय में है और बाहर भी है। हमारा हृदय में हम ही अनुभव कर सकते हैं, में कोई संदेह नहीं। और नहीं है ऐसा बोलने की कोई युक्ति है क्या आपके साथ? हाय बोलने के लिए अभी युक्ति मैंने दिखाया, नहीं ऐसा बोलने के लिए कोई युक्ति नहीं क्या? ये है स्तोत्र। और आगे मैं राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र के बारे में आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। ये स्तोत्र है, स्तोत्र अंतिम स्तोत्र भाग है, तो श्री शंकराचार्य कहते हैं, आप देखिए राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र, यह तो वेद का सार है। भुजंग प्रयातम परम वेद सारम, वेद का सार। वेद का सार यानी क्या?
ये याद करो, वो याद करो, यज्ञ करो, या व्रत करो, या उपवास करो, ये नहीं है, वेद का सार नहीं है। वेद में ये भी बतलाया है, उसमें कोई संदेह नहीं। जो जो चाहता है उसके अनुसार उसका अनुग्रह करना तो वेद का अवश्य कर्तव्य है, इसलिए वेद में वो भी बताया। किंतु वेद का सार है ये तो दुख दूर करने के लिए, सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए जो रास्ता दिखाना है वो तो दिखाया है वेद में, वो वेद का सार है। श्री शंकराचार्य कहते हैं राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र में भी मैं यही बतलाया, वेद का सार मैं बतलाया। क्या उसके बाद मुदा रामचंद्रस्य भक्त्या च नित्यम, रामचंद्र जी का अरे परमात्मा का मैं पहले ही बताया हूँ, तो नाम केवल देवताओं का नाम उपासना के लिए बताया। परमात्मा के बारे में भक्ति से हर दिन पठन संततम चिंतयन शांतरंगे, एक राम भुजंग प्रयास में जो बताया है उसका पठन और सदा सर्वदा निरंतर चिंतन करना, मन में अनुसंधान करना, यह करता है तो सएव स्वयं रामचंद्र धन्यम, ये वेद का सार है। वो स्वयं रामचंद्र होता है, स्वयं रामचंद्र होता है जिससे इसका अर्थ है आनंद रूप में होता है। रामचंद्र का अर्थ है आनंद, शाश्वत आनंद। ये शब्द रामचंद्र उपनिषद में एक स्पष्ट रूप में कहा है। परमात्मा, आत्मा, देव, ये सब आनंद का अलग अलग शब्द है। इसलिए स्वयं राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र पढ़ने से जो हम सब चाहते हैं, आनंद 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 चाहते हैं, वो स्तोत्र पारायण से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र में अंतिम स्तोत्र है। और राम भुजंग में और एक स्तोत्र है, शिलापि त्वदंघि क्षमा संगिरे प्रसादाधि चैतन्य माधंतराम। ये श्लोक आप देखिए, हम सब जानते हैं अहल्या जी का कहानी, उसके बारे में मैं विवरण देना नहीं चाहता हूँ, आप जानते हैं। किंतु आपको ध्यान इस विषय में लाना प्रयत्न करूँगा। और क्या हुआ कहानी में, क्या तात्पर्य क्या कहानी का। अहल्या जी तो बहुत बड़ा दोष किया, पाप किया। अच्छा ठीक है, वो तो गौतम जी ने शाप दिया, आप शिला हो। कोई अहल्या जी शिला रूप में गिर गए। राम जी उस रास्ता में आए। उस समय में वस्तु रूप में, वास्तविक में राम जी कह सकते थे कि तो आप गलत किया जीवन में, बहुत बड़ा गलत। इसलिए मैं कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, मैं समर्थ हूँ भी, क्योंकि मैं राजा होकर अपराध जो किया उसके बारे में कैसा अनुग्रह दे सकता है। और शिक्षा अवश्य देना है, तो आपका पति ही दिया है, इसलिए मैं आगे जाऊंगा, ऐसा बोलकर जा सकता था। किंतु राम जी ऐसा नहीं किया, उनको आनंद किया। देखो राम जी का विशेष, परमात्मा का विशेष है। फिर शंकराचार्य जी ये घटना स्वीकार करके स्तुति किए हैं। परमात्मा राम के बारे में स्वयं राम शंकराचार्य जी ने प्रार्थना करते हैं, हे राम आप तो चैतन्य स्वरूप है, वो तो शिला रूप में गिरा है, फिर आपका संपर्क से वो भी चैतन्य हुआ, यानी फिर अहल्या जी बने। शिला को ऐसा चैतन्य फिर बना सकता है आप, तो आप ये मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा विषय में क्या आप चिंतन करते हैं, अनुग्रह करो। इसका अर्थ क्या है आप देखिए। हमारे जीवन में गलत करते ही सब लोग, न केवल इतना, उसके बारे में सदा सर्वदा हम दुख भी अनुभव करते हैं, मन में पुनः पुनः वो चिंतन करते हैं, तो मैं ऐसा गलत किया, और लोग नहीं जानते हैं, वो तो रहस्य में किया हो गलत मन में, या कोई जब कोई न होता उस समय में कुछ भी हो, किंतु मन में
वो गलत के बारे में पश्चाताप करते आ रहे हैं हम सब लोग। उसको निवारण करना है ना, नहीं तो कैसा मैं मतलब आनंद का अनुभव करना कैसे है? जब तक चिंतन दुख का चिंतन ही कर रहे हैं तब तक कोई आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। किंतु शंकराचार्य ने उसका उपाय बताया है, तो उसका चिंतन छोड़ दो, परमात्मा अनुग्रह करता है। गलत कैसा कुछ भी होता है, पराजित होता है, खाली बुद्धि पूर्वक हम कर सकते हैं। फिर भी पश्चाताप के मन में पश्चाताप होकर मन में यह प्रार्थना करते हैं तो अरे अहल्या जी भी अनुग्रह प्राप्त किया है, हमें तो क्या कारण नहीं होता है, इसलिए तो बताने के लिए अवश्य ही होता है, प्रार्थना करो। इस कार्य से ये उदाहरण बता के कि शंकराचार्य ने ये प्रार्थना की है कि मन में ऐसा पाप के बारे में दोष जो किए करते हैं उसके बारे में चिंतन या दुख पश्चाताप सदा सर्वदा होता है, वो तो मिटाने के लिए निकालने के लिए स्तोत्र अत्यंत महत्व होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए एक उदाहरण ऐसा उदाहरण दिया है स्तोत्र में भी, और ये बताना चाहता हूँ दशश्लोकी का एक उदाहरण। अच्छा समय हुआ इसलिए मैं इतना ही चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। समय Kakak out di समय है 10 मिनट कैसे? आप दशश्लोकी का एक श्लोक कहाँ बताया है, न भूमिं न तोयं न तेजो न वायु न नेन्द्रियम। इस श्लोक में मुख्य रूप में शंकराचार्य जी ने हमारा ध्यान में इस चीज का प्रवेश जैसा हो ये प्रयास किए हैं। क्या है मैं कौन, इसके बारे में चिंतन करते करते हर दिन हर क्षण हमारा स्वरूप में जाकर खड़े होने के लिए उपाय यहाँ बताए। कैसा? न भूमिं न तोयं न तेजो न वायु न खन्नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। यानी शरीर तो पंचभूत के बारे में करते हैं, भूमि या जल या अग्नि या वायु या आकाश, ये सब मैं नहीं हूँ, एक प्रथम आवेदन। अच्छा, उसके बाद ये समूह का जो वस्तु होता है, उदाहरण हमारा शरीर, ये हमारा शरीर में ये पंच भी है, पृथ्वी का अंश है, ये सब पंचभूतों का अंश है, हम जानते हैं। तो मैं यानी यह हो सकता है क्या? नहीं, वो भी न तेषां समूह। तो कहना तो सुलभ है, किंतु उसका कोई कारण देना है ना, उसके लिए कारण युक्ति देना है, लॉजिक देना है। तो तीसरा पंक्ति आप देखिए, अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धः। ये मेरा स्वरूप है, ये तो सदा सर्वदा एक ही है। ये तो प्रथम निश्चय करना है। कारण क्या? बचपन में जो मैं था अभी भी मैं वह ही हूँ। कारण क्या? मैं बचपन से ही मैं एक अनुभव में, मेरा अनुभव में है, और अभी भी मैं कह रहा हूँ। किंतु क्या हुआ? बचपन में मेरा शरीर इतना ही था, अभी व्यत्यास हो रहा है। जो व्यत्यास होता है वो मैं नहीं हो सकता। मेरा प्राण, मेरा बुद्धि, मेरा मन, ये सब बचपन में कैसा था, अभी तो व्यत्यास हुआ है, इसलिए वो एक भी मैं नहीं हो सकता। किंतु मैं जब वो मन में है, बोलता हूँ, वो तो अखंड रूप में एक ही है। यह है युक्ति। एक रूप में जो होता है वह ही मैं हो सकता है,
वो तो व्यत्यास जो होता है, पंचभूत हो, शरीर हो या अलग कोई वस्तु हो, अनेक अनेकांतिकत्व शब्द का अर्थ है, एकांत शब्द का अर्थ है नियत रूप में होना, अनेकांतत्वात् उसका विरुद्ध यानी व्यत्यास होना। ये सब व्यत्यास होते हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ, ये सब अलग है, अलग वस्तु है। अच्छा, इसका अनुभव में कोई दिखा सकता है क्या? शंकराचार्य बताते हैं सुषुप्त्यैक सिद्धः। आप देखिए शंकराचार्य जी का उपदेश कैसा होता है। पंचभूत नहीं है और पंचभूत से उत्पन्न हो वस्तु जो है वो भी मैं नहीं हूँ। तो जो दुनिया में क्या अवशिष्ट है? दुनिया है पंचभूतों का समूह है और उस पंचभूतों का मेल से उत्पन्न हो वस्तु जो है वो है दुनिया, और अलग कोई है क्या? वो मैं नहीं होता है तो और अवशिष्ट क्या है? मैं नहीं हूँ। इतना ही कहना तात्पर्य होगा। किंतु शंकराचार्य ने बताया सुषुप्त्यैक सिद्धः। नींद के संदर्भ में, सुषुप्त के संदर्भ में अनुभव क्या है? भूमि भी नहीं होता है, ये सब हम जानते, फिर मैं नहीं कहता हूँ, किंतु मैं होता है नींद में, तो क्या अर्थ हुआ? ये सब छोड़कर भी एक चैतन्य अवशिष्ट होता है। ये युक्ति ये बार बार मन में लाना है। न केवल इतना, उसका स्वरूप क्या है कैसा बताते हैं आप देखिए। सुषुप्त्यैक सिद्धः, हमारे नींद में तो सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम्। उस समय शिव यानी आनंद, शिव केवलोहम्। उस समय दुख कुछ भी नहीं, कोई भी कोई अनुभव में नहीं है, प्राणियों को भी नहीं है, केवल सुख वही अवशिष्ट होता है, वही हमारा स्वरूप। अब देखिए स्तोत्र के द्वारा ये जो जड़ पदार्थ हैं ये सब दूर करके हमें क्रमशः आनंद में लाने का प्रयास शंकराचार्य जी ने कैसे यहाँ किए हैं हम देख सकते। न केवल इतना, ये दश श्लोकी में अलग श्लोकों में भी ये हमारा जाति और अलग भिन्न भिन्न भाव है ना समाज में, ये सब निकालने के लिए स्तोत्र में कैसा प्रयास किए हैं आचार्य शंकर जी ने। आप देखिए अलग अगले एक श्लोक है, न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्माः न धारणा ध्यान योगादयोपि। इतना सरल है और आनंद से गान कर, हमारा राग नहीं, संगीत का अभ्यास का आवश्यक नहीं है, हमारा स्वर में हमारा गान आनंद में बताते बताते हम अंततोगत्व आनंद में खड़े हो सकते हैं। स्तोत्र का महत्व है। इसमें मतलब है वर्ण यानी जाति, न वर्णा, मेरे कोई जाति नहीं है, और वर्ण आश्रम आचार धर्म, मैं सन्यासी हूँ, आप लोग गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं, ये तो वास्तविक रूप में नहीं है। अरे है ना, है, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वो ये सब किसको बताते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? न मे धारणा ध्यान योगादयो, ये तो काम है, कर्म है, कर्तव्य है, आश्रमादि का कर्म। और आचार्य शंकर जी ने बोलते हैं अनात्माश्रयाहम ममाध्यासहानम। ये सब अज्ञान से आया हुआ है। न केवल इतना, ये सब शरीर के संबंध है, न मुझे, न मेरे संबंध है, इसको नहीं। मेरा स्वरूप है तदेको वशिष्ठ शिव केवलो। बार बार इस चिंतन से जाति इत्यादि विषय के कोई भी चिंतन कर नहीं सकता है। न केवल इतना, और लोगों को बारे में अत्यंत गौरव, अत्यंत स्नेह साझा स्वरूप में हमारे हृदय में आता है, उसके कोई संदेह। ऐसा श्री शंकराचार्य जी हजारों वर्ष पहले हमारा देश में एक महत् परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उसमें कोई संदेह नहीं। इतना ही नहीं, स्तोत्र में और अलग विचार है।
आज जो समय हुआ इसलिए फिर भी 10 मिनट का या विशेष अवकाश दिए हैं, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और मन के बारे में हमारा पूर्वजों ने क्या चिंतन किए हैं, आप अवश्य हो तो आपको जानना पड़ता है, मेरा अपेक्षा है, क्योंकि मन ही हमारा साधन है। इसलिए वो उस मन के बारे में हमारा पूर्वजों ने उपनिषदों में या शंकराचार्य क्या बताए हैं, यदि हमारे दिमाग में होगा अवश्य ही हमारा जीवन आप संतुष्ट जीवन संतृप्त जीवन होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। वो तो अति सुलभ रूप में 1 घंटा में उसका सार हम ग्रहण सकते हैं। और जब अवसर होगा उस संदर्भ में मन के बारे में भी अवसर होता है तो मैं उपनिषदों में क्या कहे हैं उसके बारे में कहूँगा। आज इतना ही कहकर मेरा कथन समाप्त करने के पूर्व एक कार्यक्रम के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अयोध्या में अगले जनवरी 23 जनवरी 28, 29 2 दिन, यानी 27 शाम वहाँ आना है अयोध्या। वहाँ 2 दिन का विशेष सेमिनार होगा, चर्चा गोष्ठी होगी। चर्चा गोष्ठी में विशेष रूप में साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आयुर्वेद में हो, हमारा मॉडर्न साइंस मेडिकल साइंस में हो, जो डॉक्टर्स हैं उनका एक समावेश हमारा अपेक्षा है। 500 डॉक्टरों का मेलन करना है पूरे देश। विषय क्या, यह तो महत्वपूर्ण विषय है जन्म मरण और पुनर्जन्म, इसके बारे में चिंतन। इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या करता है तो हम लोग करते हैं। शंकराचार्य ने क्या विश्लेषण किया है, मरण के बारे में हो, जन्म के बारे में हो, पुनर्जन्म के बारे में हम करते हैं। तो मेडिकल साइंस द्वारा जो आज तक अध्ययन किए हैं, आविष्कार किए हैं, उसके बारे में वो तो वैद्य लोग कहेंगे कि तो हमारा उद्देश्य इसका चर्चा, इसका चिंतन नहीं है। तो आप अभी तो गूगल जाकर तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सेमिनार का आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास ये है इस चिंतन से हर एक को क्या प्रयोजन हो, उसका जीवन में इसका आवश्यकता क्या है, चिंतन का आवश्यकता क्या है, ये तो वैज्ञानिक रूप से समाज के सामने रखना है। यह हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए हम और वैद्य ये सब मिलकर चिंतन करके सामने रखे, हमारा समाज अत्युत्तम समाज होगा, ये तो हमारा मन में अपेक्षा है। इसलिए सेमिनार रखे हैं। मैं तो सब लोगों को आह्वान करता हूँ, आप आइए, कम से कम कुछ आसक्ति वाले जो हैं आप आ सकते हैं। उसका के बारे में जो विवरण अभी सब चल रहा है, उसका चिंतन सब शीघ्र ही ब्रोशर ये सब सिद्ध होगा। उसके बाद हम भेजेंगे यहाँ, आप और भी देख कर आ सकते हैं। आइए, ये तो मेरा अपेक्षा है, क्योंकि IIT में हम हैं, समाज हमारे से भी विशेष अपेक्षा अवश्य ही रखा है। इसलिए समाज को अभी आपका व्यवहार या आपका जो रास्ता है उसके द्वारा समाज को अवश्य ही दे आ रहे हैं आप, उसके कोई संदेह नहीं। इसके साथ ये ऐसे चीज़ों जो है बहुत, क्या मरण से जीवन तक क्या हमारे जीवन होता है, ये तो ठीक भाग्य का क्षमा है। जीवन यानी क्या, जन्म से मरण तक, बस जन्म से मरण तक जीवन ठीक तरह से करना है तो कि मरण का परिचय हो अवश्य भी हम कर सकते, हर एक कर सकते, वो कैसा वो दिखाना है कि हमारा सेमिनार द्वारा, ये हमारा प्रयास है। इसलिए ये कि जो आप हैं आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज इस विषय के बारे में कहने के लिए रजीव जी और साथियों के जो अवकाश दिए हैं तो संतोष है। और उसमें भी कहना है कि अल्प समय, केवल 5 या 6 दिन के पूर्व बताए हैं, फिर भी आप लोग इतना बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों का श्रद्धा भक्ति ये तो
अत्यंत श्लाघनीय है। इसलिए आप लोगों को बार बार नारायण स्मरण करते मेरा काम समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणं जय जय राम। Close it with sweet memories. You go back. Thank you very much. Thanks to CCE for giving us an opportunity for arrange this event. Thanks to security who have helped us all along. And thanks to all of you for coming and making this occasion a grand success. Thank you very much.